The main stem is the portion of primary axis of the plant which develops from the plumule. The axis together with leaves, it is called shoot. Branch is also shoot and it consists of an elongated axis or stem. Characteristics includes it grows upwards towards light, it have leaves, flowers, fruits, and also bear bud and branches, nodes and internodes. The region between two consecutive nodes is called internode, and on the basis of the life cycle, plants can be annuals, biennials, and perennials. The plants which live for one single growing season, these are called as annuals. The plants which grow for two seasons are called as biennials, and the plants which grow usually for several years and produce seeds annually. And in this group, mostly woody plants and some herbs and perennial plants are included, are called as perennials. And this is the review of some types of stems. On the description, following is the description of the morphology of the stems. First one is herbaceous. Herbaceous stem is soft and green, and easily it can be easily bent or broken. For example, in brassica and poppy. Stem may be woody. That means it is hard in texture. Stems are herbaceous above and woody below. It can be fistular. In case of fistular, internodes are hollow, and from nodes, stem is solid. But in case of solid, internodes are not hollow. They are also solid, and this type of stem is present in most of the trees. Jointed, for example, in grasses and sugarcane, stem is solid, but joints are visible. Cylindrical, straight and round, circular in transverse section. For example, in sunflower, angular, having ridges and furrows. Flattened, flat, plate-like, for example, in a pancha. Glaucous, glaucous means smooth or having some shiny surface. Bluish, greenish, for example, bamboo. Glabrous, surface is smooth but not shiny. Succulent, thick and fleshy. Spiny, having spines or thorns on the surface. Prickly means having spines or prickles. For example, rose. What is the difference between spines and prickles? Spines are provided with vascular bundle and prickles are the surface outgrowths. Spines are present in acacia and prickles are present in rose. There are different forms of the stem. For example, aerial stems. Aerial stems may be reduced, erect, and deep. Reduced stems are found in radish, carrot, and beet, and they are in the form of small green structures above the thick roots. And erect stems are thick and strong and can grow erect in forms of herb and shrubs. Weak stems cannot grow erect. Therefore, they expose their leaves to the air and light by either climbing up to the neighboring objects or by spreading themselves on the ground. Thus, they may be climbing or trailing, depending upon the situation. Plants possessing them are known as climbers or trailers.
स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमने पहले पढ़ चुके हुए हैं, इट वाज द रिव्यू ऑफ योर लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स। आज का जो हमारा लेसन है वो है क्लाइंबिंग प्लांट्स और द क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स को अगर हम देखें तो वो वाले प्लांट्स होंगे जिनकी स्टेम्स वीक हैं, वो सीधा ग्रो नहीं कर सकते, वो किसी सपोर्ट के साथ कॉइल करके या फिर अपने अंदर से कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स को करते हैं। फॉर एग्जांपल उनमें कॉइलिंग थिन स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो सरफेस के साथ कॉइल कर जाते हैं, आपने देखे होंगे प्लांट्स, वो निकलते हैं, या फिर हुक्स निकलती हैं, कांटों की तरह की लंबी लंबी हुक्स, जैसे बोगनवेला बेल यहाँ बहुत कॉमन है, उसके अंदर से निकलते हैं और वो वेविसेस में सरफेसेस पे क्लिंग कर जाते हैं और प्लांट्स फिर उन पे क्लाइंब करते हैं। पहले इसमें एग्जांपल्स आएंगी ट्विनर्स की। ट्विनर्स में जो स्टेम है वो ही आप अगर कॉन्वोल्व्यूलस को देखें तो स्टेम ही जो है वो प्लांट ग्रो ही कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके गिर्द लिपट के करता है। ट्विनर्स हैव लॉन्ग स्लेंडर स्टेम, स्लेंडर मींस पतली, stems with long internodes. They do not develop any special organs for climbing. ये ज्यादातर बेलें जो होती हैं, जैसे कोई साथ घास या कुछ भी शर्ब्स हर्ब्स जो भी उग रही होती हैं उनके साथ ये क्लाइंब करती रहती है। और इसमें ट्विनिंग मूवमेंट ऑफ द स्टेम एपेक्स लुक फ्रॉम अबव में बी क्लॉ, इसमें क्योंकि इसकी स्टेम ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द कॉइल कर करके घूमती जाती है और चढ़ती जाती है, इनकी कॉइलिंग क्लॉकवाइज भी हो सकती है और काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकती है। क्लॉकवाइज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर कॉइलिंग होती जाएगी, काउंटर का मतलब होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और काउंटर क्लॉकवाइज में हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। और इसमें जो एग्जांपल है वो कॉन्वोल्वुलस की है, इसकी मैं आपको बाद में डायग्राम्स भी दिखाती हूँ। फस्क्यूटा है। तो इसकी जो सेकंड एग्जांपल है ट्विनर्स के अलावा वो है टेंड्रिल। टेंड्रिल, यहाँ पे ये ट्विनर की ऊपर आप डायग्राम देखें तो ये स्टेम ही किसी ऑब्जेक्ट के उसी तरह से गोल गोल जो है वो करके चढ़ती जा रही है। ठीक है, ये इसे टेंड्रिल को मिस कर छोड़ दें जरा भी, तो ये इसमें स्टेम ही दूसरे ऑब्जेक्ट की गिर्द कॉइल करेगी और चढ़ेगी। दूसरा आ जाता है टेंड्रिल क्लाइंबर्स। टेंड्रिल क्लाइंबर्स में स्टेम्स जो हैं वो सिलेंडर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं जिसको आप कहते हैं टेंड्रिल्स। उसके टेंड्रिल्स के थ्रू ही जो है वो सपोर्ट के गिर्द जो है वो क्लाइंब करता है। यंग टेंड्रिल्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं कांटेक्ट के, जैसे ही उनके साथ, जैसे आप कद्दू की बेल में भी देखें तो उसके साथ धागे से निकलते हैं जो कि लिपट जाते हैं जो भी नियर बाई सरफेस होती है, अब उसको वो टच जैसे करता है वो उसके साथ ट्विन इट, और फिर उसके टेंड्रिल्स बिकम कॉइल्ड एंड इनटू अ स्पाइरल। leaflets of the compound leaf are modified into tendrils. अब एक्चुअली ये जो है ये मॉडिफिकेशन है leaflets की, compound leaves are modified into tendrils। अब इसमें एग्जांपल किसकी है, ग्लोरी लिली की, ग्लोरियोसा उसका बोटेनिकल नेम है। रूट क्लाइंबर्स, अब अगले जो है ना, इसमें क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं, जैसे जैसे प्लांट होता है उसमें एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं और नोड से, तो वहाँ से साथ ही वो अटैच करती जाती हैं सरफेस के साथ खुद को। क्लाइंबर्स अटैच themselves to the sport by means of the small adventitious root which arise from the side of the stem where it comes in contact with the sport। अब इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हुक क्लाइंबर्स और स्क्रैम्बलर्स। इसमें हुक क्लाइंबर्स में जो है वो आएगा जैसे ब्लैकबेरी है, रसबेरी है, बोगनविला है। इसमें ऐसे लगता है जैसे लंबे लंबे कांटे टाइप स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, उन्हें हुक्स कहते हैं। These plants scrambled upward by producing numerous hooks on their long cylinder shoots। उनकी शूट के ऊपर लंबे लंबे कांटों की तरह की चीजें निकलती हैं जो कि हुक अप होती जाती हैं सरफेसेस के साथ और वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं पूरे प्लांट को। अब ये जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने डी तक इसकी ये टाइप थी 4, ये क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं, इनको आप लोग कहेंगे क्लाइंबर्स। और इसमें क्लाइंबर्स की में पहली ये क्लाइंबर्स किसकी टाइप है, वीक स्टेम वाले प्लांट्स की।
और वीक स्टेम्स में फर्दर जो पहली आती है एग्जाम्पल वो है क्लाइंबर्स और क्लाइंबिंग प्लांट्स। फिर फर्दर उनकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, ट्विनर्स हैं, उसके बाद टेंड्रिल क्लाइंबर्स हैं, रूट क्लाइंबर्स हैं, हुक क्लाइंबर्स हैं और स्टैम्बलर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी ट्रेलर्स। ट्रेलर्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी, क्योंकि ये भी जाहिर है इरेक्ट तो ग्रो नहीं कर सकते, तो ये अपने आप को स्प्रेड आउट करते हैं, ट्रेल अलोंग द ग्राउंड करते हैं, एक्सपोज देयर लीव्स टू द सनलाइट। और इनमें उस तरह से हुक्स वगैरह या उस तरह से ये नहीं बनाते, ये सरफेस के ऊपर ही ग्रो करेंगे। ये उसमें लास्ट वाले में और इसमें डिफरेंस है। तो स्ट्रेट ये ग्रो करेंगे। जैसे आप लोगों ने बखरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गंदम के खेतों में या इस तरह से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये अपने आप को, एक इसकी जड़ होती है और ये काफ़ी ज़्यादा सरफेस के ऊपर फैल के अपने आप को बिछा लेता है। जैसे इसमें पहली जो एग्जांपल है, दिस इज क्रीपर। क्रीपर मेन स्टेम ग्राउंड के ऊपर फैल जाएगी और उसके अंदर से एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी। एडवेंटिशियस रूट्स ऐसी होती हैं कि जहाँ नोड से लीफ निकलता है उसके नीचे ऊपर जो है वो लीफ निकलेगा, नीचे वाली साइड पे रूट्स निकलेंगी नोड से। और वो क्या होता है, बाद में क्या होता है कि जो बिटवीन द नोड्स देन डाइज अवे बिटवीन द नोड्स, इंटर नोड वाली जगह से वो मर जाता है और वो जो उसकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो ज़मीन में जाके एक नया इंडिविजुअल प्लांट बना देती हैं। The nodes which thus survive give rise to the new plants। अब ये ग्राउंड ईवी है और उसके अलावा क्रीपिंग जेनी के अंदर ये होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो भी आप देख सकते हैं, स्टेम कीपर के ऊपर की साइड पे ये लीव्स निकल रहे हैं और उसके साथ नीचे ही वहाँ पे रूट्स निकल रही हैं। सेकेंड वन इज द रनर। रनर में आप क्योंकि घास आपने देखा हुआ है, घास के अंदर क्या होता है कि शूट जो है वो सिलेंडर होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि पहले वाली जो आपने एग्जांपल देखी है उसमें ये जो इंटर नोड है ना, यहाँ से वो डाई कर जाता है, तो जिस ये अलग-अलग से प्लांट्स बनते हैं। लेकिन घास अगर आप लोग देखें तो उसकी शूट सिलेंडर होती है, पतली होती है, जो सरफेस के साथ मूव करती है ग्राउंड के, और जैसे वो कंसिडरेबल लेंथ तक ग्रो भी कर जाती है। और इसी तरह से इसमें ग्रासेस में क्या होता है कि लीफ के एक्सिल में से, जैसे ये लीफ है ना, ये लीफ है, ये मेन स्टेम है, इसकी ये जो एक्सिल है यहाँ पे ये देखिए आपको एक ये नजर आ रहा है। अब ये जो एक्सिल ऑफ द लीफ में से शूट निकलती है, पेरेंट एरियल शूट, और वहां पर क्या होगा, एंड पोजेसिंग लॉन्ग इंटरनोड्स। इसके अंदर ये जो इंटरनोड का है ना, ये लंबा होता है। और द नोड्स बियर, अब यहाँ पर ये जो नोड्स हैं इसके अंदर स्केल लीव्स होते हैं, ठीक है। स्केल लीव्स आर ब्राउन इन कलर और ईच हैविंग अ बड इन इट्स एक्सियर। अब वो जो स्केल है उसके अंदर बड होगी और वहीं से फिर जो है वो नया प्लांट निकल आएगा। ये वाली एग्जांपल होती है, इस किस्म के प्लांट्स प्रेजेंट होंगे। साइनोडॉन, डेक्टाइलॉन इसकी एग्जांपल है रनर की। और बच्चों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है वीक स्टेम्स की आगे टाइप्स। अब अगर हम स्टोलन की बात करते हैं तो स्टोलन में अब देख लें इंटरनोड, ये इसमें रनर में जो है ना ये मरता नहीं है, ये प्रेजेंट रहेगा। स्टोलन इज ए मच इलोंगेटेड रनर। अब इसमें ये थोड़ा थोड़ा सा बस इनमें फर्क है कि स्टोलन जो है वो बिल्कुल रनर की तरह ही है, बट इसमें क्या होगा कि मच इलोंगेटेड है। अब इसमें क्या होता है कि वो जो जब स्टेम ग्रो कर रही होती है तो सम हो या तो वो जमीन के अंदर एंटर हो जाती है या फिर वो जमीन सरफेस को टच करती है और वहां पे वो रूट्स देती है, फिर वो आगे चली जाती है। बस ये इसमें रनर में और इसमें डिफरेंस है। इसमें अक्सर डिफरेंस भी आ जाता है। डाउनवर्ड्स ईदर एंटर्स द सॉइल और सिंपली टचेस इट एट इट्स टिप। After giving off adventitious roots into the soil at this point, it turns upward and its terminal bud develops into a new plant. By the death of the stolon, the new plant becomes separated from the parent plant. ये इसकी एग्जांपल भी आप देखें, ये क्योंकि सारे मिलते जुलते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा है कि ये यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्योंकि ये सरफेस ऑफ द जो ग्राउंड है, स्टेम स्टेम क्या करेगी कि वो नीचे जाएगी। इसमें अक्सर ये होता है कि जैसे ये टिप है ना, तो ये जब ग्रो कर रही होती है तो ये जैसे ही ये वाला इसमें इंटरनोड के बाद ये इसमें इंटरनोड रनर की निस्बत ज़्यादा लंबा होता है और ये सरफेस के साथ जब टच करती है तो वहाँ पर ये रूट्स देती है।
और या फिर ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ से ये ज़मीन के अंदर भी चली जाती है और फिर बाहर निकल आती है। ये स्टोलन का केस है। अगर हम ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट इज़ अ थिक शॉर्ट रनर। अब ये इसके अंदर ये क्या है, रनर है, बट इट इज थिक, उससे मोटा है और उससे छोटा है, which turns up at its tip, giving off adventitious roots into the soil and develops into a new plant. For example, again, by the death of the offset, new plant becomes separated from the parent plant and leads an independent existence. अब इसमें यही होगा कि ये जो ये है ना इनका इंटरनोड, ये छोटा होगा लेकिन उसके साथ साथ ये मोटा होगा। और उसके एक और चीज़ है इसके अंदर कि जब इसकी डेथ हो जाएगी इंटरनोड की तो ये उसी तरह से इंडिपेंडेंट प्लांट्स बन जाएंगे। सकर, अंडरग्राउंड रनर और शूट। रनर, जाहिर है इसके लिए रनर का वर्ड भी वो यूज कर रहा है। एक्सिलरी बर्ड, वहां से ये राइज करेगा ओल्डर इरेक्ट स्टेम के, और ये मिंट में होता है जैसे पुदीना है। इट ग्रोज हॉरिजेंटली फ्रॉम सम डिस्टेंस इन द सॉइल एंड देन टर्न्स अपवर्ड एंड गिव राइज to an aerial erect shoot or new plant, giving off adventitious roots into the soil at the base as in mint. अब इसमें भी जो है वो एक्सिलरी जो है वो शूट निकलेगी और उसी तरह से वो ज़मीन के अंदर जाएगी, नया प्लांट बनाएगी, और ये अंडरग्राउंड रनर है, यानी ज़मीन के अंदर ये ग्रो करेगा और फिर बाहर भी निकलेगा। Suckers may arise from adventitious buds. Suckers may also rise from adventitious buds on the roots as in raspberry, rose, plum, cherry। ये सारी इसकी शीशम, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर आप पॉपुलर को देखते हैं, सकर्स अगर आप लोग इसमें देखें ना शीशम में, तो उसकी जो जड़ें होती हैं उसके साथ ही आपको नए प्लांट्स उगते हुए नजर आएंगे, तो वो क्या है, सकर्स हैं। पॉपुलर का भी दरख्त होता है, विलो है, उसी तरह से दलबर्जिया सीसू है, सकर्स, ये सारे उसके लॉन्ग डिस्टेंस, अक्सर पौधा कहीं पे होता है और उसकी जड़ों के साथ से वो उसके नए प्लांट्स को राइज करते हैं।